Good morning, students. I hope you have listened to or watched to the previous video of linear list part 1, in which we studied about what is linear list and some basic operations like searching, in which we talked about linear search and binary search. So two type of programs were there, and I explained you both of those programs. Now we will talk about इंसर्शन एंड डिलीशन इन लीनियर लिस्ट. तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें दो चीज़ें हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन इन लीनियर लिस्ट. ये बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब बड़ा आपका चैप्टर है, इसलिए इसको धीरे धीरे करके ही कवर करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ टुडेज टॉपिक वी स्टार्ट इंसर्शन इन लीनियर लिस्ट. इंसर्शन इन लीनियर लिस्ट, इंसर्शन कैसे किया सकता है? इन टू वेज. इफ द एरे इज अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मीन्स एरे का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी रैंडमली लिखा हुआ है, देन द न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द एरे. ठीक है. इफ सपोज कीजिए, इफ यू हैव रिटन 12, 10, देन 21, 41, 2, and if you want to insert 15 in this array, so where will it inserted? तो आपको यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि एरे के एंड में. बट सेकेंड थिंग इज, इफ द एरे इज सॉर्टेड, देन न्यू एलिमेंट इज एडेड एट अप्रोप्रिएट पोजीशन विदाउट ऑल्टरिंग द ऑर्डर, एंड टू अचीव दिस रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर शिफ्टेड. तो इट इज कॉमन सेंस दैट इफ देखो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 10, 12, 23, ये आप देख रहे हैं, दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड यू वांट टू ऐड 35. देन फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड द पोजीशन. So you will see 10, 12, 23, 25, 31 and 39. So you will see that 35 will be inserted between 31 and 39. So this is the right position for 35. So to create space for new elements, existing elements are shifted downwards. So these are shifted downwards and we have make a room for this. Then it is inserted here. If the array is already full, then the insertion of an element into its result into overflow. So overflow is a condition where array is already full and you cannot insert in an array. Okay, so you have to remember that term, what is overflow, and you have to write it in your notes also. If the array is already full, then insertion of an element into its result into overflow. Next, अब इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे. फर्स्ट, द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर आइटम इज टू बी डिटरमाइंड. दैट इज, इफ द अप्रोप्रिएट पोजीशन इज i+1, देन ARI शुड बी लेस देन इक्वल टू आइटम. इट मीन्स इफ आई हैव पोजीशन 5 फॉर इंसर्शन, देन एट पोजीशन 4 द वैल्यू विल बी लेस एंड एट पोजीशन 6 द वैल्यू विल बी मोर. वही वो कहना चाह रहा है कि आइटम अगर मेरा यहाँ पे जो भी इंसर्ट करना है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी उस आइटम से कम होगी और यहाँ की जो वैल्यू होगी उस आइटम से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. LST specifies maximum possible index in array. LST means last. U specifies index of last element in array. So हमने यहाँ पे कुछ दिया है, ये एल्गोरिथम है, कंट्रोल इक्वल टू है, LST इक्वल टू यू, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बट मैं आपको जो बताऊंगी, देखिए एल्गोरिथम तो आप खुद भी समझ सकते हैं. व्हेन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, सो वी विल गो डाउनवर्ड्स. You just now read the traditional algorithm of inserting an element in a sorted list given above. If you notice, the above algorithm involves shifting of element. तो इसमें actually क्या है? It involves shifting of elements. Shifting of elements in an expensive operation in a programming language. तो अभी हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी idea of algorithmic efficiency की. So here you can say that if you shift the elements, then it is an expensive and it is not efficient. Expensive in the sense that it consumes much of CPU time. So to understand this, consider the following example. So here now we understand by example कि कैसे काम करता है.
So this is an array given to you. It is an increasing order. Element to be inserted 44. So अब आपको पता चलना चाहिए, देखो कहाँ होगा 44, यहाँ नहीं, यहाँ 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 पे, इन दोनों के बीच में कहीं 44 आएगा. So determine the appropriate position for new element. It is index 2. इंडेक्स 2 यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है. तो इन दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ, ये तो सब शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा. तो इंडेक्स 2 पे आपको शिफ्ट करना है. आफ्टर एलिमेंट 33, क्रिएट स्पेस इन द एंड ऑफ द एरे फॉर वन एलिमेंट. सो आपने एक लास्ट में एक अपने एलिमेंट की स्पेस बना दिया है. ये आप कहोगे कि स्पेस तो यहाँ बनाना था, बट नहीं, यहाँ पे बनाना है. क्यों? क्योंकि ये सब शिफ्ट होंगे ना यहाँ पे. तो आपको जो सीपीयू है, ये जो प्रोग्रामिंग है, उसमें ऑलरेडी एक स्पेस लास्ट में एक्स्ट्रा रखना है. क्यों? क्योंकि शिफ्ट होंगे तभी तो यहाँ पे खाली होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, कीप शिफ्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड. सो हेयर फ्रॉम द राइट एंड वी हैव टू कीप शिफ्ट till index 2. So first shifting is this, second shifting, third shifting, fourth shifting, fifth shifting, and ultimately the room is here. Now insert the new element here. As you can make out that insertion of a new element requires the shifting of elements to make room for new element. ठीक है, and it should be avoided. ये आपको अवॉइड करना है. If a better algorithm is available, तो अब हम क्या करेंगे, एक अच्छी एल्गोरिथम देखेंगे जो इससे अच्छा काम कर सके. तो इसमें पाइथन में एक बेटर एल्गोरिथम के लिए एक मॉड्यूल होता है बाइसेक्ट. ठीक है, क्या नाम है, बाइसेक्ट, अवेलेबल इन बाइसेक्ट मॉड्यूल. ठीक है, सो इफ यू यूज फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर इम्पोर्टिंग बाइसेक्ट मॉड्यूल, तो आपको पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ता है वॉट एवर मॉड्यूल यू वॉन्ट टू यूज इन योर प्रोग्राम. देन यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट. वेट, so you have to use this statement, bisect dot insert. Bisect is the name of module, insert is the name of function, and these are the parameters or argument you will use. This is list and this is new element which you want to insert. So insert function of bisect module inserts an item in the sorted sequence, keeping it sorted. तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो वहां पे ऐड करके देता है, आपको नहीं करना है. तब अब फंक्शन ऑफर्स a better algorithm to insert in a sorted sequence. But one thing that you must remember is that the bisect module works on a sequence arranged in ascending order only. So bisect module works on only ascending order. ठीक है, not in descending. Bisect module also offers another function. क्या होता है, bisect function that returns the appropriate index where the new item can be inserted to keep the order maintained. So wherever you want to enter that element, that index आपको कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे. ठीक है, bisect dot bisect. So bisect is the module, but here we have read two functions. First is insert and second is bisect. It will give you the index where the new element should be inserted. So in your notes you should write both of these statements. It means आपको ये वाला इसमें से notes बना के जरूर लिखना है. In the following lines we are giving two programs for insertion of an elements that uses traditional algorithm given above by finding position and shifting elements. ठीक है, तो दो काम करने होते हैं. पहली बात finding position, then shifting elements. अब देखो ये कैसे करेंगे दोनों काम. See here, अब ये प्रोग्राम आपका है इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे यूजिंग ट्रेडिशनल एल्गोरिथम. तो जो आपने वहां पे एल्गोरिथम पढ़ी थी, ठीक है, उसका प्रोग्राम तो ये है. तो एल्गोरिथम आप बाद में समझ सकते हैं, पहले मैं आपको प्रोग्राम समझा रही हूँ, तो उसी के बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड एल्गोरिथम ऑल्सो. See here, def find position. So it is a function only to find the position. So this is your array where you want to add the item, and this is your item. Size, what will be length of AR. Length function you already know. Whenever you want to check the length of a array or a list, then you use length function. If item is less than AR0, AR0 means first position element. So if the item you want to insert, means if you are in your array is starting from 10, 12 this, but if you want to add 8, ठीक है, 8 आपको insert करना है in the array. So if this is already less than this, so you can insert here also. तो return 0 means position is 0, else position equal to -1. Okay, तो इसका क्या मतलब है अभी देखो आगे देखेंगे. फॉर आई इन रेंज साइज -1, क्योंकि आपको पता है यहाँ 0 से शुरू करते हैं और 1 कम तक चलते हैं, दैट्स वाई साइज -1.
ARI लेस देन इक्वल टू आइटम एंड आइटम इज लेस देन ARI प्लस 1। तो क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है फिफ्थ पोजीशन पे तो फोर्थ पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए और सिक्स्थ वाले की इससे ज्यादा होनी चाहिए। देन पोजीशन विल बी I प्लस 1। वाई पोजीशन इक्वल टू I प्लस 1? बिकॉज I इज द इंडेक्स। हमने पिछले जब लीनियर सर्च किया था तो बताया था कि अगर इंडेक्स हमारी है 0 बट पोजीशन क्या होगी I प्लस 1, मतलब पोजीशन तो हमारी 1 है ना, इंडेक्स तो 0 है क्योंकि वो एरे 0 से स्टार्ट करता है, पर एक नॉर्मल पर्सन की ये पोजीशन तो उसकी फर्स्ट पोजीशन है। देन यहाँ ब्रेक हो गया। ब्रेक क्या काम करता है ये आपको पिछली साल बताया था। यू शुड रिमेम्बर ऑल द स्टेटमेंट। ये क्या होते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ये सब। इफ POS इक्वल्स टू -1 एंड I इज लेस देन इक्वल टू साइज -1 देन पोजीशन इक्वल टू साइज। यानी कि ये क्या बताता है आपको एक्चुअली कि लास्ट में ऐड होना है। ये मैं आपको बताता है कि हमारी जो पोजीशन है -1 का मतलब क्या, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट था आपका यहाँ पे देखो पोजीशन इक्वल टू -1 क्या है, वो लास्ट के ये कहता है कि अगर हम देख रहे हैं कि बीच में कहीं ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, बीच में तो वो कहीं भी नहीं हुआ, अगर बीच में होगा तो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएंगे और सीधे प्रोग्राम के बाहर। ठीक है, लेकिन अब ये जो पोजीशन क्या कहती है, अगर ये पोजीशन हमारी नहीं है, यानी कि बीच में कहीं नहीं है, लास्ट में कहीं नहीं है, तो ये बीच में कहीं नहीं है, स्टार्टिंग में कहीं ऐड नहीं हो रहा, तो ये लास्ट की कंडीशन है। ठीक है, तो अगर ये साइज -1 मतलब लास्ट के एलिमेंट से देखेंगे तो पोजीशन इक्वल टू साइज, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। तो साइज पोजीशन कैसे कि अगर 0 से लेके 9 तक चल रहा है हमारा, ठीक है, तो पोजीशन इक्वल टू साइज मतलब बिल्कुल इस एलिमेंट पे आ जाएगा, लास्ट वाले पे। रिटर्न POS। ठीक है, 2-3 कंडीशन है। फर्स्ट इज की स्टार्टिंग में देखना है, स्टार्टिंग वाला जो है वहां पे ऐड होगा, या फिर मिड में कहीं ऐड होगा, या लास्ट में कहीं ऐड होगा। फिर शिफ्टिंग के लिए एक फंक्शन है, डेफ शिफ्ट AR पोजीशन AR डॉट अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन आपको पता है, नन यहाँ पे अभी तो कुछ भी ऐड नहीं किया। ऐड एन एम्प्टी एलिमेंट एट द एंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया था उसमें भी कि फर्स्ट यू हैव टू ऐड एन एम्प्टी एलिमेंट एट द एंड। देन साइज वाला सेम फंक्शन, देन I इक्वल टू साइज -1 वाइल I इज लेस देन इक्वल टू पोजीशन से जब तक ज्यादा है कंडीशन तब तक आपको ARI इक्वल टू AR -1 यानी कि शिफ्ट करते जाना है, शिफ्ट करते जाना है ना। पहले वाला एलिमेंट देखो असाइनमेंट कैसे होता है, ये यूं असाइनमेंट होता है ना, तो I -1 मतलब 4 वाली पोजीशन को 5 में डालना है, 5 वाली पोजीशन को 6 में डालना है, इस तरह से। एंड I इक्वल टू I -1। अब मेन फंक्शन आपका आता है जहां से एक्चुअली प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, कैसे होगी वो? सो मेन फंक्शन, व्हाट डज मेन फंक्शन से? माई लिस्ट। अब ये एरे इसने बनाया है जो आपको जहां पे एडिशन करना है, इंसर्ट करना है। लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर इज, और प्रिंट करना है लिस्ट को। देन आइटम जो आपको एंटर करना है। पोजीशन आपको फाइंड करनी है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? फाइंड POS। माई लिस्ट यानी कि जो एरे बनाया वो आपने दिया है और आइटम यहाँ से दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ के आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं, एक एरे और एक आइटम। तो हमको पता है आर्ग्यूमेंट टू आर्ग्यूमेंट पासिंग करते हैं। देन शिफ्ट फंक्शन कॉल करेंगे, माई लिस्ट पोजीशन। तो पर एक बार पोजीशन फाइंड आउट हो गई, फिर उसको शिफ्टिंग करना है माई लिस्ट कॉमा पोजीशन से। माई लिस्ट की पोजीशन में आपको फिर आइटम डाल देना है, प्रिंट करना है द लिस्ट आफ्टर इंसर्टिंग आइटम इज, और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉट एवर वी हैव टू डू वी हैव ऑलरेडी डन फंक्शन, वी जस्ट हैव टू कॉल। तो सॉर्टेड ऑर्डर की स्टार्टिंग में ये आ गई, जो आपको इंसर्ट करना है वो ये आ गया, कहाँ पे इंसर्ट होगा वो आपका ये आ गया। समझ में आया? तो ये क्या था? ट्रेडिशनल एल्गोरिथम थी जो आप नेचुरली यूज करेंगे, नॉर्मल ये कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन अब आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के अंदर आपको एक स्पेशल मॉड्यूल मिला, क्या नाम था? बाइसेक्ट मॉड्यूल। तो अब आप उसको यूज करके हाउ कैन यू इंसर्ट एन एलिमेंट, तो वो हम पढ़ेंगे। सी है इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे यूजिंग बाइसेक्ट मॉड्यूल। सो फर्स्ट यू हैव टू इम्पोर्ट बाइसेक्ट, देन आपने लिस्ट बनाई है, देन सेम वही आपने लिस्ट को प्रिंट किया है, देन आइटम आपने लिया है वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट। इसमें क्या है, यू हैव नॉट यूज्ड एनी फंक्शन, है ना, सिंपल। आपको 2 लाइन में ये पूरा प्रोग्राम हो जाता है, इसलिए दैट्स वाई यू हैव नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन एनी फंक्शन पार्ट ऑफ प्रोग्राम और मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने इंडेक्स लिया, इंडेक्स आपको पता है which function do you use to find out the index? you use bisect। तो bisect डॉट bisect my list कॉमा item, तो ये तो आपको अपने आप इंडेक्स फाइंड आउट करके देगा।
देन बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट माई लिस्ट कॉम आइटम, ये आपको शिफ्टिंग करके देगा ऑटोमेटिकली. देन प्रिंट आइटम इंसर्टेड एंड इंडेक्स IND, तो यहाँ से आपको इंडेक्स मिल गया तो हम लिख देंगे ये आइटम हमने इस जगह इंसर्ट किया है. द लिस्ट आफ्टर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट माई लिस्ट. ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 लाइन्स. समझ में आया पाइथन यूज करने का फायदा क्या होता है. बट वन थिंग यू मस्ट बी अवेयर ऑफ विच इज दैट द बाइसेक्ट मॉड्यूल फंक्शन हमारे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर पे काम करते हैं. बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन फर्स्ट रिवर्स द ऑर्डर लिस्ट डॉट रिवर्स. रिवर्स करने पे क्या होता है, वो अपने आप रिवर्स हो जाता है. ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है. देन एड द न्यू एलिमेंट यूजिंग सेम वही बाइसेक्ट डॉट मॉड्यूल जैसे ऊपर किया आपने, और फिर रिवर्स आपको वापस कर सकते हैं आपको आंसर अगर डिसेंडिंग में ही चाहिए तो. समझ में आ गया. तो ये नाउ यू कैन इजीली इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लिस्ट. सी यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाई मैडम इज नॉट टाइपिंग एंड शोइंग द प्रैक्टिकल ऑफ दिस प्रोग्राम. First of all, this is very time consuming for me also because I have to write all the whole program, which will take time. And second thing is you are in class 12th now and you already know how to do programming in Python. So I don't think I have to tell you that which software should you install or which software should you open. So you can easily do it. And if I will do everything, and what will you do? What is your take? Because I am giving you all the PDF, I am giving you all the material, I am giving you all the lectures. Then what you have to do? You have to do the programming part, because only then you will understand how mistakes can you rectify in your programming part. So you must work on that. Understood? So now we will move to deletion. How can we delete? Deleting an element from a sorted list. ठीक है, द एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज फर्स्ट सर्च्ड. अब इसमें क्या करना पड़ता है, या तो आप लीनियर सर्च से उसको फाइंड आउट करेंगे या बाइनरी सर्च से फाइंड आउट करेंगे. इफ द सर्च इज सक्सेसफुल द एलिमेंट इज रिमूव्ड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर शिफ्टेड सो एज टू कीप द ऑर्डर ऑफ एरे अनडिस्टर्ब. बट अब इसमें नीचे की जगह शिफ्ट करेंगे या ऊपर करेंगे, ऑफकोर्स ऊपर करेंगे, बिकॉज वो डिलीट हो जाएगा तो वहां एक जगह खाली हो गई. अब आपको ऊपर शिफ्ट करना है. देखो इसमें कितना इजी दिया हुआ, आपको ये एलिमेंट डिलीट करना है, आपने यहाँ से डिलीट कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, देन आपने ऊपर शिफ्ट किया. समझ में आया इसमें क्या हो रहा है. नेक्स्ट देखिए इसमें, इफ द एलिमेंट्स आर शिफ्टेड डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स राइट साइड देन अनयूज्ड एलिमेंट्स are available in the beginning of the fixed size array, otherwise free space is available at the end of the array. However, if you are implementing arrays through list, then there would not be any such issue as Python lists are very flexible and can grow shrink easily. इसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि या तो आप सारे एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करेंगे, सारे एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर रूम खाली हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे एक रूम खाली हो जाएगा. ठीक है, ये चीज लिखी हुई है इसमें. इसका देखो इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, अगर आपको अपवर्ड शिफ्ट करना है यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो क्या करना. तो बोथ ऑफ साइड यू कैन शिफ्ट इजीली, बट मेरे ख्याल नीचे जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो दैट इज बेटर, क्योंकि उसमें नीचे जगह जाती है, लास्ट में खाली रह जाता है. नेक्स्ट इज Python provides a remove method that itself take care of shifting of element. तो देखिए यहाँ पे भी हमने एक मेथड पढ़ा, what is this remove method. तो इसमें भी shifting अपने आप होती है. You have worked with remove method and delete item statement of list in class 11. The same method you can use for removing an element from a sorted array. अब देखिए कैसे करेंगे. आपने यहाँ बाइनरी सर्च ये यूज किया है, तो ये जो पूरा है ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है. सो आई हैव नथिंग टू डू विद इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. नेक्स्ट इज माई लिस्ट. आपने लिस्ट ली, देन सॉर्टेड ऑर्डर की लिस्ट, देन आइटम, देन बाय सर्च यू आर परफॉर्मिंग इफ पोजीशन. इट मीन्स इफ यू हैव फाइंड आउट द पोजीशन देन डिलीट माई लिस्ट पोजीशन. माई लिस्ट मतलब लिस्ट का नाम है और उस पोजीशन वाले एलिमेंट को आप डिलीट कर दीजिए, इसका मतलब ये है. देन द लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग आइटम इज प्रिंट कर देना लिस्ट को, एंड सॉरी नो सर्च एलिमेंट इन द लिस्ट. समझ में आ रहा है आपको. सो यहाँ पे क्या हुआ, बाय सर्च यूज करी, देन सिंपल
उसमें क्या किया, डिलीट वाला यूज़ किया, कोई भी इसमें बड़ी चीज़ नहीं करी हमने, जो आपने अभी तक सिंपल लिस्ट यूज़ करी है उसी के थोड़े से मॉडिफाइड प्रोग्राम्स हैं ये, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें आपको यूज़ करना, आपने देखा कितनी छोटे से में आराम से प्रोग्राम हो जाता है। तो अब प्रोग्राम एरे रीड करेगा, देन आस्क फॉर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, देन सर्चेस फॉर द एलिमेंट्स पोजीशन इन द एरे यूजिंग बाइनरी सर्च, और अगर मिल जाता है तो एलिमेंट पोजीशन पर डिलीट हो जाता है, और नहीं मिलता है तो ये आपको दिख जाता है। सो इट इज डन फॉर टुडे। नेक्स्ट वी हैव टू रीड और एंड many things actually, because it is a very big chapter। तो आपको बहुत पार्ट में, मेरे ख्याल ये 5-30 चाहिएगा ये पार्ट, तो 2 पार्ट्स ही हुए हैं अभी तो। इन next week I may be not available, I will not be actually, because I have my in-service course for 6 to 17 July, so maybe I will not be posting any new video, so revise your old videos, or you must have not seen, तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।